Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले रिवीजन करेंगे हम फ्रेंड्स पुराने करंट अफेयर्स की। जैसे बात करूं मैं, इंडियन नेवी ने अभी उनका पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप को लॉन्च किया जिसका नाम है INS अरनाला। आई रिपीट, INS अरनाला वो इंडियन नेवी का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप रहेगा। ठीक है, दूसरे पे आते हैं इनस्पेस ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया QNew लैब्स के साथ ताकि सैटेलाइट QKD प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सके। QKD क्या होता है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने पढ़ा था क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में, जिसकी डिस्कवरी के लिए ही अभी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है कि पार्टिकल्स अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट में हैं तो वो कितने भी डिस्टेंस पे हम उनको दूर ले जाएं, अगर हम एक को चेंज कर देंगे तो दूसरे की प्रॉपर्टीज को हम इजीली प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये क्वांटम एंटेंगलमेंट हमें इनके बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड याद रखेंगे कि अभी इनस्पेस ने अभी एक डीप टेक स्टार्टअप के साथ डेवलप किया, QNew लैब्स के साथ एक QKD प्रोडक्ट्स डेवलप करने की बात की गई, जिससे क्या होगा, जो आपकी कम्युनिकेशन होगा ना वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। काफ़ी इजीली यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह हम कम्युनिकेट कर पाएंगे विद फुल सिक्योरिटी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इंडियन नेवी को अभी उनका 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वजीर मिला है। तो INS वजीर क्या है? इंडियन नेवल शिप वजीर। ये आपका 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन रहेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं UI ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 को लेके। यहाँ पे अगर मैं पूछूं इंडिया की मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो है मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। आई रिपीट, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ये इंडिया की मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी है। इंडिया में ये आ जाती है 1st पोजीशन पे। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो ये 101st पोजीशन पे आती है वर्ल्ड वाइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये लिस्ट कौन रिलीज़ करता है? यूनेस्को के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और याद करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। और पेरिस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2024 के ओलंपिक गेम्स भी होने हैं। अब वापस आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे। अभी रिसेंटली टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलीज़ की गई, जिसमें इंडिया के 3 जगहों को ऐड किया गया। एक तो है वादनगर टाउन, ये क्या है?
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का होम टाउन। मोधेरा सन टेम्पल दूसरा, और तीसरा उनोक्ति स्कल्पचर्स। इन तीनों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की। 2022 की सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, इंडिया की क्या रैंक रहेगी यहाँ पे, और टॉप किसने किया? इंडिया रहता है 110 नंबर पे इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ टॉप किसने किया, तो डेनमार्क ने फर्स्ट पोजीशन आई इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। इंडिया में भी किसने टॉप किया इन दिस इंडेक्स, तो इंडिया में भी पुडुचेरी ने टॉप किया इन दिस सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स फॉर 2022। और यहीं पर लीस्ट पोजीशन किसकी रही, जिन्होंने लोएस्ट स्कोर किया? झारखंड एंड बिहार। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है आपकी? बिहार में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। फिर बात करते हैं सेकेंड एडिशन ऑफ गुड गवर्नेंस वीक की। 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर के बीच में हम गुड गवर्नेंस वीक ऑब्जर्व करते हैं, और इसका भी सेकेंड एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया 2022 में। फिर आ जाता है मेघालय ने टॉप किया इन द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। मतलब एग्रीकल्चर की मदद से जो घर की कमाई हो रही है, एवरेज इनकम हो रही है, अगर टोटल स्टेट्स का हम मिला के देखें, सारे स्टेट्स का डाटा निकालें, तो देखा गया कि मेघालय ने टॉप किया है इन द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेघालय ने कि जो लोगों की वहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ से जो मंथली इनकम आती है किसी हाउस होल्ड की, वो है 29,334 रुपये। वहीं पे पंजाब आ गया सेकंड पोजीशन पे विद 26,701 रुपये। ये एवरेज मंथली इनकम है किसी भी एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की, जो हाउस होल्ड एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहता है। ठीक, चलिए फिर आ जाते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे IDEX, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेशन। IDEX इन्होंने अभी 150वां कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन किया है ऑल्ट एयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया ना, ये एक इनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इस इनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली क्या होगा, जो आपके वेरियस प्रोडक्ट्स हैं उन पे रिसर्च की जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स देना बेसिकली क्या होगा कि उन पे नए नए प्रोडक्ट्स लाएंगे सामने, जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी ना डिफेंस सेक्टर। लेकिन सबसे पहले आपको चीज़ जो ध्यान में रखनी है ना, वो क्या है, ऑल्ट एयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, क्योंकि ऑल्ट एयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ये विनर थे डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के, जो कि है डिस्क 7। ठीक है, स्प्रिंट एडिशन के। और ये जो थीम थी, ये जो आपका चैलेंज था, ये किस थीम पे बेस्ड था? ये आपका EMATT पे बेस्ड था। EMATT क्या है आपका, हम देखें तो ये है आपका एक्सपेंडेबल मोबाइल एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग टारगेट। EMATT कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग साउंड एंड मूवमेंट ऑफ अ सबमरीन। तो ऑल्ट एयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड विनर रहेंगे डिस्क 7 स्प्लिट एडिशन ऑन द थीम EMATT पे। ठीक, फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं IDEX ये कब लॉन्च किया गया था? 2018 में लॉन्च किया गया था। डेवलप फंडेड एंड मैनेज्ड बाय DIO। ठीक, DIO के द्वारा इसको फंड किया जाता है। DIO क्या है? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, और यहीं पे DIO क्या करता है, जो स्टार्टअप्स हैं रिलेटेड टू डिफेंस, उनको एंकरेज करता है, उनको आपकी फंडिंग प्रोवाइड करता है, ताकि वो आगे बढ़ सकें और लोग उसकी हेल्प कर सकें यहाँ पर। फिर इसी में याद रखेंगे IDEX ने अपना 100 कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अभी जुलाई मंथ में 2022 में, और अभी रिसेंटली उन्होंने 150वां कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन किया किसके साथ? ऑल्ट एयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपना 150वां कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। फिर हम बात करते हैं इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा इंडिया का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया गया है। आई रिपीट, इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया क्या? GIXI। और ये GIXI क्या है? इंडिया का पहला नेशन वाइड प्राइस इंडेक्स, जो कि नेचुरल गैस के प्राइसेस को ऑल ओवर द इंडिया रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ जैसे हम देखें सिमिलर टाइप ऑफ के प्रोडक्ट हैं JKM, वो क्या है? जापान कोरिया मेकर। HH हेनरी हब। फिर आ जाता है वेस्ट इंडिया मेकर WIM। इसके बाद आ जाता है डच का TTF। तो ये भी सिमिलर काइंड के नेशन वाइड प्राइस इंडेक्स हैं, जो कि
अपनी अपनी कंट्री के वहाँ पे लॉन्च किए हुए हैं। और इंडिया का सिमिलर जैसे क्या लॉन्च किया गया, GIXI, जो कि इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, ये रिफ्लेक्ट करता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस फॉर ऑल गैस ट्रेडेड एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द गैस प्राइजेस एट द वेस्टर्न एंड साउदर्न हब्स। ठीक, फिर जो IGX प्राइस इंडेक्स है ये कैलकुलेटेड है फॉर वेरियस हब्स एंड डिलीवरी पॉइंट्स विद IGX प्राइस बीइंग डिस्कवर्ड बेस्ड ऑन एक्चुअल डिलीवरीज मेकिंग इट रिफ्लेक्ट द ट्रू मेकर सिचुएशन। ठीक, फिर इसी के अलावा अगर मैं IGX की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे यहाँ पर, राजेश कुमार मेदिरत्ता। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2020 में। तो याद रखेंगे IGX के द्वारा GIXI लॉन्च किया गया, जो कि इंडिया का पहला गैस प्राइस इंडेक्स रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी इंडिया के द्वारा पहला SCO IBC मीटिंग को हेल्ड किया गया विद अ फोकस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड क्रिएशन ऑफ डाटा बैंक। ठीक है, आई रिपीट, इंडिया ने अभी 19th मीटिंग हुई पहली, याद रखेंगे 19th मीटिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड कोऑर्डिनेटर्स ऑफ SCO इंटरबैंक कंसोर्टियम, और ये पहली टू बी हेल्ड अंडर द इंडियाज प्रेसिडेंसी केम टू एन एंड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, प्रेसिडेंसी किसके पास है, SCO की, इंडिया के पास है, और इनके अंडर पहली हुई थी। और वैसे 19th एडिशन था ये मीटिंग का ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड कोऑर्डिनेटर्स ऑफ SCO इंटरबैंक कंसोर्टियम। ठीक, यहाँ पे जो बेसिकली बात की गई है वो क्या है कि हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, कि जो हमें क्लाइमेट को, हम जानते हैं जो हमें क्लाइमेट में फाइनेंसिंग करनी होगी और जो अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना होगा, ताकि जो हमारा चेंज ला सके, हम टेक्नोलॉजी में चेंज ला सके, हम इंडस्ट्री रेवोल्यूशन ला सकें, ताकि जो हम नॉर्मल अभी क्या करते हैं, हम कोल को बंद कर देते हैं और उससे पोल्यूशन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उसको पानी में रिलीज कर देते हैं, इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है इन द एयर एज वेल एज इन वाटर। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना, इन चीज़ों पे वर्क करना, तो इस पे खर्चा लगेगा, इस पे पैसा लगेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो वो कॉस्टली होते हैं, उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए हम देखेंगे कि इन सभी चीज़ों पे बात करने के लिए ही ये SCO IBC को की मीटिंग इंडिया के अंडर पहली बार, और वैसे इसकी 19th मीटिंग थी अभी जो सेटअप की गई। ये मीटिंग को 8 मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा चेयर अटेंड किया गया था। और मैं बात करूं इसी की, तो 8 नेशन ग्रुप कौन से हैं SCO के, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो 8 फरवरी 2023 को शेड्यूल की गई है। ठीक, और याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 22वीं SCO समिट, जो कि उज्बेकिस्तान के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी 15-16 सितंबर को, उसमें पार्टिसिपेट किया गया था। और उज्बेकिस्तान से फिर प्रेसिडेंसी इंडिया को दे दी गई थी फॉर SCO। G20 की भी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी हेड कौन रहेगा इस बार, इंडिया ही है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को याद रखना है, UNSC, G20 और SCO तीनों की प्रेसिडेंसी और या चेयरमैनशिप का इंडिया के पास है। अगर यहीं पे मैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरबैंक कंसोर्टियम की बात करूं तो 26 अक्टूबर 2005 को ये सेटअप किया गया था। और रीज़न क्या था कि अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ये जो मेंबर्स हैं यहाँ पर, तो एक दूसरे की यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स लाने के लिए यहाँ पे ये सेटअप किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, IFSCA ने इंट्रोड्यूस किया एक फ्रेमवर्क टू बूस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स फ्रॉम जिफ्ट सिटी। हम जानते हैं जो पहली फाइनेंशियल सिटी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी इंडिया की, वो कौन सी है, वो आपकी जिफ्ट सिटी है, जो कि कहाँ पर है, गांधीनगर, गुजरात में है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली न्यूज़ क्या है, IFSC कम्स आउट विद द न्यू फ्रेमवर्क टू बूस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स फ्रॉम जिफ्ट सिटी। और यहीं पे याद रखेंगे IFSCA, इन्होंने अभी CEEW, काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के साथ एक MOU साइन किया फॉर द म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन द कॉर्पोरेशन द एरिया ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस। मतलब सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए एक MOU साइन किया गया IFSCA एंड CEEW के द्वारा। यहीं पे अगर IFSCA की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट हम जानते हैं अर्बन एरियाज़ में जो आपकी सिटी लाइफ हो गई या फिर जो शहर हो गए, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस है,
उसकी अच्छी खासी पेनिट्रेशन है, मतलब लोगों को अवेयरनेस है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस करानी चाहिए, क्या होती है हेल्थ इंश्योरेंस, क्यों करानी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों की जागरूकता है आपके अर्बन एरियाज़ में। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें रूरल एरियाज़ में, तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कैसे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती है, कैसे एक इमरजेंसी टाइम पे वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाएगी। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे ही लोगों को रूरल एरियाज़ में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ही IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सून एक बीमा वाहक को लॉन्च किया जाएगा। इनको अपॉइंट किया जाएगा हर ग्राम पंचायत में इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द इंश्योरेंस फोर्स इन इंडिया। राकेश जोशी जो कि एक IRDAI के मेंबर हैं, इन्होंने एक अनाउंसमेंट दी कि ड्यूरिंग द बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ BFI इनसाइट समिट 2022 की जो मुंबई महाराष्ट्र में हुई, कि हम बीमा वाहक को अपॉइंट करेंगे हर ग्राम पंचायत में। ठीक है, ताकि ये सेल कर पाएं सर्विसेज जिसको बीमा विस्तार बोला जाएगा, लाइन ऑफ बेसिक पैरामेट्रिक बंडल्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो प्रोवाइड करेंगी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्थ, प्रॉपर्टी, लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंट्स इन द रूरल एरियाज को यहाँ पे टारगेट किया गया है अभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे HDFC बैंक। इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ? कुसुम के साथ। कुसुम क्या है? केरला स्टार्टअप मिशन के साथ। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो बैंक है ना, यूटिलाइज करेगा अपना एक बैंकिंग सॉल्यूशन है इनका HDFC का, वो है स्मार्ट हब टू एड स्टार्टअप्स। देखो स्टार्टअप्स को बेसिकली क्या चाहिए होता है कि को स्टार्टिंग में उनकी हेल्प करे ग्रो करने में, चाहे वो फाइनेंशियली हेल्प हो, चाहे उनको वो मेंटरशिप प्रोवाइड करके हो, चाहे उनको ठीक रास्ता बता के हो, चाहे उनको गाइड करके हो। तो बैंक है तो उनको वो स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली तो हेल्प करेगा ही करेगा, इसी के साथ साथ उनको और भी बाकी एरियाज़ में जहाँ पे नीड होगी, जिसमें ज़रूरत होगी, जिसमें सपोर्ट देने की बात होगी, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो याद रखेंगे HDFC बैंक ने अभी एक MOU साइन किया कुसुम केरला स्टार्टअप मिशन के साथ, ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके वेरियस स्टार्टअप्स को इन केरला। और ये कुसुम क्या है कि केरला में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप कल्चर को एक बूस्ट देने के लिए और स्टार्टअप्स की हेल्प करने के लिए, ताकि वो ईजिली ग्रो कर सके, ये लॉन्च किया गया था। ठीक, और ये जो MOU है 1 साल के लिए साइन किया गया है, और जो करंट वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर है उसमें बूस्ट लाने के लिए, उसका एक पार्ट बनने के लिए HDFC बैंक ने ये कुसुम के साथ टाई अप करा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका बैंक की। कर्नाटका बैंक अभी आइस गेट पोर्टल पे प्लेटफॉर्म पे गया और इन्होंने बोला जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कस्टम्स ड्यूटी यहाँ से इजीली पे कर पाएंगे एज पर देयर कन्वीनियंस विद द इंटीग्रेशन ऑफ द आइस गेट प्लेटफॉर्म। मतलब कर्नाटका बैंक के आइस गेट प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन के बाद जो भी कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी कस्टमर्स को, वो एज पर देयर नीड्स इजीली यहाँ पे पे कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी, कर्नाटका बैंक ने अनेबल किया अपने क्लाइंट्स को टू पे कस्टम्स ड्यूटी ऑनलाइन बाय गोइंग लाइव ऑन इंडियन कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, जो कि आइस गेट है, जो कि नेशनल गेटवे है ऑफ इंडियन कस्टम्स ऑफ द CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स ने अभी एक MOU साइन किया CSIR IIP के साथ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड IIP क्या है? ये आम है CSIR का, और IIP क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ये कहाँ पर है? देहरादून में है, और देहरादून में कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो याद रखेंगे टाटा प्रोजेक्ट्स ने एंड CSIR IIP ने, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है, इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सके। अब जैसे हम जानते हैं कि आजकल जो भी नए प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, जो भी नई एनर्जी रिसोर्स सेटअप करने की बात की जा रही है, वो क्या है? रिन्यूएबल होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी हम पॉल्यूशन क्रिएट करता हो, जो भी कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता हो, ऐसा एनर्जी सोर्स हम डेवलप ना करें और ऐसे एनर्जी सोर्स में हम पैसा ना लगाएं। तभी आप देखेंगे सोलर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपके थर्मल प्रोजेक्ट्स पे बात की जा रही है। कल हमने देखा था एक स्टोरेज यूनिट सेटअप करने की बात की गई थी थर्मल एनर्जी का, 250 मेगावाट का, ये आपका 250 किलोवाट पर आवर का शायद वो एनर्जी स्टोरेज यूनिट था। ठीक, स्विट्जरलैंड की कंपनी सेटअप कर रही थी इंडिया के साथ। ऑलराइट, तो ये क्या है कि सारी एनर्जी आप देखेंगे ना, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है, ताकि पॉल्यूशन ना फैले और हम ग्लोबल वार्मिंग जो चेंज हो इतना हम देखने को मिल रहा है टेम्परेचर में, उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक,
तो इसीलिए टाटा प्रोजेक्ट्स ने अभी एक MOU साइन किया था CSIR IIP के साथ फॉर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट बात करते हैं कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट ये क्या है, एक आपकी USA बेस्ड कंपनी है, ठीक है, IT कंपनी है। और कॉग्निजेंट ने अभी गरुड़ा एरोस्पेस के साथ टाई अप किया टू प्रोवाइड एडवांस डिजिटल टूल्स फॉर दिस ड्रोन्स। हम जानते हैं गरुड़ा एरोस्पेस क्या है, ये एक ड्रोन स्टार्टअप है, ड्रोन्स बनाती है। तो कॉग्निजेंट का जो अपना डिजिटल एडवांस टूल्स हैं, जो इनके टूल्स हैं, जो इन्होंने प्रोडक्ट्स डेवलप कर रखे हैं, जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रखे हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए टू गरुड़ा एरोस्पेस, ताकि वो उनको अपने ड्रोन्स में इजीली इंप्लीमेंट कर सकें एंड यूज़ कर सकें। इसीलिए इन दोनों के बीच में भी एक MOU साइन किया गया। गरुड़ा एरोस्पेस हम जानते हैं चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड ये एक ड्रोन बेस्ड कंपनी है। और इनकी बात करें तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किन को अपॉइंट किया था रिसेंटली, इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था ताकि वो अपने ड्रोन्स को प्रमोट कर सकें। इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो ये आपका गरुड़ा एरोस्पेस है, यहाँ पर कुछ 500 से भी ज़्यादा स्किल्ड पायलट्स हैं अक्रॉस 26 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया, जो कि 400 से 500 ड्रोन के फ्लीट को ईजिली ऑपरेट कर रहे हैं। इन कोलैबोरेशन विद कॉग्निजेंट एंड गरुड़ा एरोस्पेस, इन दोनों के साथ मिलकर क्या है कि लोगों को यहाँ पे IoT थिंग्स के बारे में प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग स्किल्स, फिर एनालिटिक्स के बारे में। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो एक डिजिटली जो भी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, आप देखेंगे जो पायलट्स होते हैं, जो ड्रोन्स के पायलट्स हैं, उनकी भी आप देखेंगे आने वाले टाइम में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी निकलेंगी। आप देखते हैं कि जैसे जैसे रेवोल्यूशन आता रहता है ना, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आपने देखा जब ओला आया था, ऊबर आया था, तो आपने क्या देखा कि जो ड्राइवर्स थे उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग गई थी। काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर्स थे जो कि गाड़ी लेके आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी थी उस सेक्टर में। तो सिमिलरली हम देखेंगे ड्रोन्स आने से जो पायलट्स हैं, जो ड्रोन्स को चलाएंगे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सामने निकल के आएंगी। कॉग्निजेंट की अगर यहाँ पे हम बात करें तो कॉग्निजेंट के CEO कौन है, ब्रायन हम्फ्रिस। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, USA में। कब इस्टेब्लिश किया गया, 1994 में। अगर मैं बात करूँ गरुड़ा एरोस्पेस की फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, अग्निश्वर जयप्रकाश। और हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा गरुड़ा एरोस्पेस का, चेन्नई तमिलनाडु में। और ये कब इस्टेब्लिश की गई थी, 2015 में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता जी। इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ NDIAC। NDIAC क्या है, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो याद रखेंगे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता को अभी चीफ अपॉइंट किया गया, चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनका जन्म हुआ था 1957 में एंड इन्होंने एडवोकेट के लिए अप्लाई किया था 1980 में। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ही वर्कड एज एन एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब फ्रॉम 97 टू 1999 और इनको अपॉइंट किया गया था जज ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन 2002। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं RRVL। ये एक्वायर करेगा मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया को फॉर 2850 करोड़ रुपीज़। आई रिपीट, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, इन्होंने प्लान किया कि ये 100% स्टेक, अपना 100% इक्विटी बाय करेंगे मेट्रो कैश एंड कैरी प्राइवेट लिमिटेड, मेट्रो इंडिया की, फॉर 2850 करोड़ रुपीस। ये जो ट्रांजैक्शन है इट इज शेड्यूल्ड टू बी क्लोज्ड बाय मार्च 2023 सब्जेक्ट टू अ फ्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अदर यूजुअल क्लोजिंग कंडीशंस। तो RRVL रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड 100% इक्विटी स्टेक बाय करेगी मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, कितने के लिए, 2850 करोड़ रुपए के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नासा की। नासा ने अभी स्पेसएक्स को सेलेक्ट किया टू प्रोवाइड लॉन्च सर्विसेज फॉर सेंटिनल 6B मिशन और इसका इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है $94 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली, ये आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया नासा ने स्पेसएक्स के साथ। नासा क्या है, USA यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, इनकी क्या है, आपकी स्पेस एजेंसी है। और स्पेसएक्स किसकी है, इलॉन मस्क की कंपनी है। तो ये प्राइवेट कंपनी है और इन्होंने इनको ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप $94 मिलियन का ये अमाउंट रहेगा। इसके लिए इन्होंने सेंटिनल 6B मिशन को स्पेस में ले जाने की यहाँ पे बात की गई। इससे पहले जो सेंटिनल 6 मिशन था वो 21 नवंबर
2020 को लॉन्च किया जा चुका है। और ये सेंट्रियल-6 भी जो मिशन है, ये एक मिशन है जो कि प्लान किया जाएगा इन द ईयर 2025। इसी के साथ साथ नासा की एक और चीज़ याद रखेंगे, डियर मून प्रोजेक्ट। डियर मून प्रोजेक्ट, ये बेसिकली डियर मून प्रोजेक्ट क्या है, ये पहला सिविलियन एक्सपीडिशन है टू द मून, उसको रेफर किया गया है एज द डियर मून प्रोजेक्ट। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, बिल नेल्सन, और हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा और नासा का, वॉशिंगटन डीसी में। इसी के साथ साथ एक और न्यूज़ याद रखेंगे कि नासा का जो मार्स इनसाइट लैंडर है ना, उसको रिटायर कर दिया गया आफ्टर 4 years ऑफ कलेक्टिंग यूनिक साइंस ऑन मार्स। ये जो लास्ट टाइम जो कम्युनिकेशन हुआ था वो 15 दिसंबर 2022 को हुआ था, लेकिन उसके बाद 2 बार कॉन्टिन्यूसली जो कम्युनिकेशन सेशंस है वो फेल हो गए। 2 बार इनसाइट से नासा के द्वारा कांटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको अभी रिटायर कर दिया गया है आफ्टर 4 years मिशन ऑन मार्स। ठीक है, तो याद रखेंगे इनसाइट जो था वो पहला रोबोटिक प्रोब था जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया था टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ मार्स, एंड नासा ने इस मिशन को डिक्लेयर कर दिया है एज रिटायर्ड, और मतलब इनको रिटायर कर दिया आफ्टर 4 years ऑफ दिस मिशन। 26 नवंबर को ये लैंड हुआ था और 5 मई 2018 को इसको लॉन्च किया गया था, एंड 26 नवंबर 2018 को ये लैंड कर गया था ऑन मार्स। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पद्मश्री अवार्डी एंड गमाका एक्सपोनेंट HR केशव मूर्ति की, जिनका रिसेंटली निधन हो गया। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ये गमाका क्या है, ये बेसिकली अ कार्ट ऑफ म्यूजिकल है, म्यूजिक है ऑफ कर्नाटका। ठीक है, इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल एंड मेलोडियस रेंडरिंग ऑफ वर्सेस फ्रॉम क्लासिकल एपिक्स दैट इज ओरिजिनेटेड इन कर्नाटका। और अगर हम इनकी बात करें HR केशव मूर्ति की, इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से ये बिलोंग करते हैं। 1934 में इनका जन्म हुआ था और रिसेंटली इनका निधन हो गया कर्नाटका में ही। ठीक, चलिए, और इनको जो पद्मश्री अवार्ड है ना, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, वो भी 2022 में ही सम्मानित किया गया था इसी साल। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे की। हम जानते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि इंडियन मैथमेटिशियन, इंडियन रिनोन्ड मैथमेटिशियन S रामानुजन, मतलब श्रीनिवासन रामानुजन, इनका जन्म हुआ था 1887 22 दिसंबर 1887 को मद्रास प्रेसिडेंसी, जब हम, और अब हम इसको तमिलनाडु कहते हैं। तमिलनाडु में 1887 में 22 दिसंबर को श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म हुआ था, और ये बहुत ही बड़े फेमस एक मैथमेटिशियन है। तो इनको ऑनर करने के लिए हम 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व करते हैं। याद रखेंगे हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 22 दिसंबर को 2012 में डिक्लेयर किया गया था कि हम हर साल अब से नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व करेंगे 22 दिसंबर को। और एक चीज़ और याद रखेंगे, 2022 को ही नेशनल मैथमेटिक्स ईयर भी घोषित किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। इसी के साथ साथ हमने, अगर हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी देखें तो 135वीं बर्थ एनिवर्सरी रहेगी S रामानुजन की 2022 में। और जो पहला एवर, फर्स्ट एवर नेशनल मैथमेटिक्स डे था, वो कब ऑब्जर्व किया गया था, 22 दिसंबर 2012 को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अभी एक फैसिलिटी लॉन्च की है, ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी। 19 सिटीज़ एंड टाउन्स में ये अवेलेबल होगी और कुछ 5.5 लाख लोग इस फैसिलिटी से फ़ायदा ले पाएंगे। डायरेक्टली ड्रिंक फ्रॉम टैप, मतलब हम देखते हैं अपने घर में हम RO लगवाते हैं, एक्वागार्ड लगवाते हैं, एक्वायर लगवाते हैं। रीज़न क्या है कि जो पानी आ रहा है हम उसको क्लीन कर सकें। लेकिन उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा या उड़ीसा स्टेट के द्वारा ये फैसिलिटी लॉन्च की गई कि आप जो टैप से पानी पियेंगे ना, आप डायरेक्टली उस पानी को ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं, वो इतना साफ रहेगा। ठीक, और ये जो है आपके ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी, इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया था अंडर 5T इनिशिएटिव, जो कि है टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइम लिमिट। एक और चीज़ याद रखेंगे, 2021 में ओडिशा की पुरी वॉज द फर्स्ट सिटी इन द स्टेट टू हैव दिस ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी, और गोपालपुर आपकी सेकेंड सिटी थी ओडिशा की टू हैव दिस ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल जी। और ये स्टेट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ओडिशा के द्वारा। कितने सिटीज़ और टाउन्स में, 19 सिटीज़ और टाउन में लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट हम बात करेंगे असम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा भी एक पार्शियल कमीशनिंग ऑफ जीका असिस्टेड गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। आई रिपीट, जीका क्या है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। तो याद रखेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इनॉग्रेट किया एक पार्शियल कमीशनिंग ऑफ जीका असिस्टेड, मतलब जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा असिस्ट किया गया गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एट एन इवेंट एट द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि गुवाहाटी असम में ही है। ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्च किया गया था 2009 में एंड इट इज शेड्यूल्ड टू बी रेडी बाय एंड फुल कमीशन बाय मार्च 2024 तक इसको रेडी एंड सप्लाई रनिंग करने की बात की गई। ये जो गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, इसका एम रहेगा टू प्रोवाइड क्लीन पोर्टेबल वाटर टू द रेजिडेंट्स ऑफ गुवाहाटी असम। इस प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो है 1.25 लाख फैमिलीज को वाटर सप्लाई करना विद अ 24 आवर्स वाटर सप्लाई। ठीक, करंटली ये जो पार्शनल कमीशनिंग हुई है, इससे अलाउ किया गया कि जो गुवाहाटी जल बोर्ड है ये सप्लाई कर पाए वाटर टू अराउंड 13,000 फैमिलीज इन गुवाहाटी इन मल्टीपल लोकेशन। ऑलराइट, और याद रखेंगे 2022 में 70 साल की एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की, मतलब 70th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की इंडिया और जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है केरला, वो पहला स्मार्ट मोबाइल कंपोस्टिंग यूनिट डेवलप किया इन्होंने अपनी स्टेट में। आई रिपीट, केरला ने पहला स्मार्ट मोबाइल कंपोस्टिंग यूनिट इनॉग्रेट किया अपनी स्टेट में। इससे क्या होगा? 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज ये कलेक्ट डेली, हर घंटे 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज को ये प्रोसेस करके उसको मैन्योर में, खाद में डेवलप कर सकते हैं यूजिंग द डिवाइस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, पहला स्मार्ट मोबाइल कंपोस्टिंग यूनिट लॉन्च किया गया केरला स्टेट में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। IDEX ने एक साइन किया 150th इनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्टेयर इंफ्रास्ट्रक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। GIXI ये पहला ये IGX के द्वारा इंडिया का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया गया। इंडिया का पहला SCO IBC मीटिंग कहाँ पे हुआ? इन द ऑन द फोकस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड डाटा बैंक, क्रिएशन ऑफ डाटा बैंक। और हम जानते हैं ये इंडिया का पहला और वैसे 19th मीटिंग थी। देन IFSCA ने इंट्रोड्यूस किया फ्रेमवर्क टू बूस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स फ्रॉम जिफ्ट सिटी। IRDI ने इंट्रोड्यूस किया बीमा वाहक को टू एक्सपेंड द इंश्योरेंस फोर्स इन रूरल एरियाज। HDFC ने साइन किया एक MOU केरला स्टार्टअप मिशन के साथ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्टार्टअप्स। कर्नाटका बैंक गोज लाइव ऑन आइसगेट प्लेटफॉर्म। Worldline e-Payment India gets RBI's in principle note to act as a payment aggregator. टाटा प्रोजेक्ट ने साइन किया एक MOU CSIR IIP जो कि देहरादून उत्तराखंड में है फॉर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस। कॉग्निजेंट ने साइन किया एक MOU विद गरुड़ा एरोस्पेस फॉर एडवांस डिजिटल टूल्स। गेल ने साइन किया एक चार्टर विद जापान मित्सुई ओस्क फॉर LNG कैरियर। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता, इनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ ऑफ NDIAC। RRVL to acquire Metro Cash and Carry India for 2,850 करोड़ रुपीज़। RRVL यहाँ पे 100% स्टेक बाय कर लेगा इन मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया। नासा ने सेलेक्ट किया SpaceX को टू प्रोवाइड लॉन्च सर्विसेज फॉर Sentinel-6B मिशन। 2025 में इसको लॉन्च करने की बात की गई। नासा रिटायर्ड मास इनसाइट लैंडर आफ्टर 4-year मिशन। पद्मश्री अवार्डी एंड गमाका एक्सपोनेंट HR केशवमूर्ति, इनका निधन हो गया। नेशनल मैथमेटिक्स डे की बात करें 22 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किया ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी इन 19 सिटीज एंड टाउन्स। ADNOC LNS साइन थर्ड चार्टर एग्रीमेंट ऑफ LNG फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिट विद AG&P। असम के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया पार्शियल कमीशनिंग ऑफ जीका असिस्टेड गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। केरला का पहला स्मार्ट मोबाइल कंपोस्टिंग यूनिट कहाँ पे लॉन्च किया गया? केरला में लॉन्च किया गया। तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे करंट अफेयर्स आज के इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्रीज लेटेस्ट डाटा, इंडिया का GDP ग्रोथ रेट फर्स्ट हाफ ऑफ 2022-23 में कितना रहा? सेकेंड, किस कंट्री ने होस्ट किया स्पेशल नेगोशिएशन राउंड ऑन 3 of 4 पिलर्स ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फरवरी 2023 में? कौन होस्ट करेगा? What is the total amount raised by the government through disinvestments and strategic sales of PSEs since 2014? चौथा, which state union territory generated most number of jobs under PM-EGP scheme in the current fiscal year? पांचवा, which institution released the 2022 in 9 charts report?
तो दोस्तों ये 5 आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द असाइनमेंट। सेशन पसंद आया तो लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन फ्यूचर में लाते रहें। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट से। ऑल्सो फ्रेंड्स, इसी के अलावा हम डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड इवन फ्रेंड्स, अगर आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है हमारे बारे में तो आपको और भी वीडियोस देखनी है तो करंट अफेयर्स बाय विकास राणा आप इजीली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे लिखकर, और आपको हमारी सारी वीडियोस जो मेरे द्वारा बनाई गई हैं, अपलोड की गई हैं, आप इजीली उनको सर्च कर पाएंगे। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.